welcome back to Sixth Science Academy. I, Vinod Sharma, welcome back you all after a very long gap, students. And today I don't want to give you any excuse that why I have been not in the class for that much of long gap. Today we are going to start a new chapter, that is magnetic effect of current, that you will study in standard 12. Let's start with the word magnetic effect of current. Suppose a current is being flowing through a wire. Okay. Suppose this is a wire through which a current is flowing in the upward direction. From the Hans Oersted experiment, you have studied that whenever a current is flowing through a wire, then what happens? It gets deflected. It shows that a force is acting onto it, isn't it? In standard 10th अपने क्लास 10th में इस चीज को पढ़ा होगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. उतना डीप में हम लोगों को स्टैंडर्ड 12th में नहीं जाना, because we have already studied in standard 10, isn't it? So if this is a wire और इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से करंट अगर फ्लो कर रहा है और यहाँ पे सामने अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास नीडल लेकर आएंगे, मैग्नेटिक कंपास नीडल लेकर आओगे तो इसका डिफ्लेक्शन होगा. इन विच डायरेक्शन इट विल गेट डिफ्लेक्टेड स्टूडेंट्स? इन दिस डायरेक्शन, isn't it? Similarly, if we'll have another wire, this time the current is flowing downward through the wire, then the deflection of that magnetic compass will be in upward direction, isn't it? It means what? There is a force on a current carrying conductor. There is a force, experience force, or you can write experiencing force on a current carrying conductor. Current carrying conductor. Okay, यहां तक हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है. Now that this current carrying wire produces magnetic field around itself, आपने पढ़ा है. From which rule बताओ, अगर आप लोगों को याद है तो? Right hand thumb rule, isn't it? That if the thumb gives the direction of the current, then your curled fingers will give you the direction of the magnetic field. So yes, you can write it as that it can be determined by the magnetic the right hand thumb rule, students. Are you getting what I am trying to say? Now moving ahead, if I will say over here that this is a wire through which the current is flowing, okay, and we know that flowing of current means what? The flow of charge, isn't it? If I say that the current is not flowing, charge is here only, means here the charge is at rest. यहाँ पे चार्ज कैसा है? रेस्ट पे. अगर यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे है तो क्या ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगा? No, there will be no deflection. Means what? Whenever the charge are at rest, means there is no current flowing through it. Means what? No force will act. No force will act onto it. Okay. Second scenario: if the charge is in motion, अगर हमारा चार्ज यहाँ पे मोशन में होगा, चार्ज मोशन पे कैसे? मतलब सपोज दिस इज चार्ज बॉडी, isn't it? ये चार्ज बॉडी को अगर आपने यहाँ पे रेस्ट पे रखा है, इस मूविंग करंट इस वायर पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसके सामने अगर किसी भी चार्ज को रेस्ट पे रखते हैं तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला. ये हम लोगों ने देखा, isn't it? लेकिन अगर इसको हम थोड़ा कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? We are talking about the magnetic field. Don't forget it. We are talking about magnetic field. Okay? इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा था कि किसी भी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी भी चार्ज को अगर आप लेके आते हो तो वहां पे क्या होता है?
it will get effect onto it and it will move onto the direction of the force applied. पढ़ा है ना, याद है आप लोगों को? अभी जस्ट कंप्लीट करा उस चैप्टर को, F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगा तो हमारा F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना बोलो, फोर्स पड़े आपको ये चीज जब ये चार्ज एट रेस्ट पे होगा। इफ, तो ये कहानी है। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने अगर चार्ज को लेकर आते हो तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। बातें समझ में आ रही है? ओके, हियर अब इस चार्ज को मैंने मोशन प्रोवाइड करवाया, प्रोवाइडिंग वेलोसिटी v, देन इट विल हैव अ डिफ्लेक्शन ऑफ v इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द करंट कैरिंग वायर। मींस यहां पे फोर्स जनरेट होगा। experiences force onto it. Understood, students? Means about the magnetic field, what you can write about the magnetic field, what that the space or the region where the magnetic influence can be felt. What the space or the region where the magnetic influence can be felt. Understood? But for the moving charge, इसलिए इस चैप्टर का एक और नाम है मूविंग चार्जेस। ठीक है, करंट प्रोड्यूस बाय द मूविंग चार्जेस। अंडरस्टूड? क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये दोनों कंडीशंस को आप समझिएगा, ये दिमाग में रखना है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला था स्पेस और द रीजन, आई एम नॉट राइटिंग इट, ओके, द स्पेस और द रीजन वेयर द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट? व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर b। ओके, क्या होगा इसका मैग्नेटिक सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा? एनीवन ट्राई टू से? टेस्ला। दैट विल बी टेस्ला। टेस्ला फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट? न्यूटन पर एम्पीयर, दैट इज व्हाट? टेस्ला, और इट कैन बी रिटन एज वेबर पर मीटर स्क्वायर। Are you getting what I am trying to say? Write it till here, then we'll move ahead, students. Okay, students, check out over here. We have to determine, B. That is magnetic field. Magnetic field आपको पता करना है. How to find it out? By a law that is known as what? Biot-Savart's law. Biot-Savart's law. इसमें क्या बोलता है? यू आर सपोज टू टेक अ वायर, एक वायर है, ओके, शो दैट द करंट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, और यहां से कोई भी पॉइंट पे एक, याद रहे वायर से परपेंडिकुलर हो, यहां पे एक पॉइंट P ले, टेकिंग दिस इज एंगल थीटा, और इस लेंथ को, dl लेंथ को इसी डायरेक्शन में मेंशन करेंगे, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट के डायरेक्शन में ही हम लेंथ को यहां पे लिखेंगे। देन द फॉर्मूला दैट वी विल गेट, दैट विल बी व्हाट? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, और इस डिस्टेंस को अगर हम r वेक्टर अगर मान लेते हैं, दिस इज व्हाट? r वेक्टर, तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट I एंड dl। याद रहे dl के ऊपर मैंने क्या पुट करा है? वेक्टर पुट करा है। डू यू नो व्हाई? लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट हियर आई हैव टेकन इट एज वेक्टर क्वांटिटी। बता सकते हैं ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैंने यहां पे मेंशन करा है कि उस लेंथ का डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे पुट करा है। और आपको पता है यहां पे dl r वेक्टर के dl वेक्टर r वेक्टर के यहां पे परपेंडिकुलर होगा, ये दिमाग में रखिए। इस डायग्राम से क्लियर नहीं होनी चीजें, ठीक है? इसके जगह अगर ये dl r के क्रॉस वेक्टर है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। जनरली आपको यही फॉर्मूला याद करना है। दिस इज व्हाट योर वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है आपका? वेक्टर फॉर्म है। दिस इज वेक्टर फॉर्म। हम लोग dl क्रॉस r क्यूब, यस एग्जैक्टली, here it will be r क्यूब। ठीक है, ये आप लोगों ने किया है पहले इस तरीके से चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने किया था, जब हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किया, इजंट इट? वहीं से ये चीजें आई। यहाँ से अगर हम आपको और डिटेल में अगर मैं बताऊं तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा magnetic field depends upon the intensity of the current. If you want to say that it depends upon the sin theta or theta, you can say it depends upon the dl length, or you can write the l length. You can say it as that it is inversely proportional to r square. इन चीजों को डायरेक्ट मैंने लिखा, इन चीजों को मैंने क्या किया? डायरेक्ट। क्लियर? चलिए यहां तक लिखिए आप लोग। So students, we have find out what over here? dB. dB is what over here? That is the magnetic field intensity due to dl length. This is the magnetic field intensity. This is the magnetic field intensity due to ये मत भूलिएगा, ये मैंने खुद करा है, dl length. Okay, you can't just write it as dl. Why? Because यहाँ पे vector dl is in the direction of the current, current के डायरेक्शन में है. Okay, now अगर ये हमारा वेक्टर फॉर्म है तो ये हमारा कैसा फॉर्म है? दिस इज स्केलर फॉर्म। पढ़ा है आप लोगों ने इस चीज? ओके, तो ये जो स्केलर फॉर्म है ये किसके लिए यूज कर सकते हैं? या फिर स्केलर है फिर वेक्टर होगी, मतलब ये जो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट के लिए काम करेगा, सिंगल एलिमेंट, मतलब इट विल ओनली वर्क फॉर दिस पार्ट, डीएल एलिमेंट। दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर द इनफिनिटली लॉन्ग वायर्स, लॉन्ग वायर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं है। इस बात को लिखो, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंट करंट, it is only applicable on element current, it is only applicable on element current। element current समझ रहे हो ना? because dl हमारा इसी डायरेक्शन में तो करंट हमारा इसी डायरेक्शन, तो वो जो करंट वो कैसा है? छोटा सा, isn't it? okay, now moving ahead, तो ये हमारा तो वहां पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, यू आर गेटिंग व्हाट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सर अभी तो हमको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन से छुटकारा मिला ही नहीं, अब नया चीज लेकर आए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, इट वाज व्हाट? द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। दिस वाज व्हाट? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, isn't it? सो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? ये भी होगा परमिएबिलिटी, ये डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ पे अभी से मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये स्टक है इस फॉर्मूला के साथ, तो इसको अलग से पढ़ना। जैसे हम लोग जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था उस वक्त भी मैंने बोला था कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय हम लोगों ने क्या सीखा था? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, जनरल फॉर्म में पढ़ा था, वहां पे भी मैंने आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं बताया था अच्छे से, यहाँ पे भी नहीं बताया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का आपको जो काम है, नाम जाना, कोई नाम पूछेगा बता देना, परमिएबिलिटी उसका वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर -7, बस आपको इतना ही मतलब है, फिलहाल इतना ही जानना, 10 टू द पावर -7। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट, तो क्या आप यहां से निकाल सकते हो ऑफ दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज परमिएबिलिटी। आप चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे भाई? यहां से इसके लिए आप क्या लिखोगे? डीवी के लिए फॉर्मूला है ना, dV is equal to what? Ideal sin theta upon r square. For magnetic field what you have written? Newton per ampere square. एम्पेयर स्क्वायर लिखो कि एम्पेयर लिखो? एम्पेयर।
isn't it? Instead of this again you will write ampere, dl लेंथ के लिए m और ये मीटर स्क्वायर, सो m से m मर जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा किसका तो ये यहाँ से एक m से एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा एम्पेयर अपॉन मीटर, यहाँ पे हमारा बचा तो ये एम्पेयर, एम्पेयर एम्पेयर क्या हो गया, क्लियर। सो व्हाट यू विल गेट न्यूटन एम्पेयर इनवर्स, क्लियर। दिस इज फॉर योर डायमेंशनल क्वेश्चन, अगर वो अगर वहां पे आएगा तो उसके लिए। नाउ अबाउट द डायरेक्शन, अब डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, यहाँ पे टॉपिक ही हमारा डिटरमिनेशन ऑफ डी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। एज आई सेड आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज द राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। विच रूल? राइट हैंड पाम रूल और स्क्रू रूल। स्क्रू में आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जब आप लोगों को मैंने वेक्टर पढ़ाया था उस समय सिखाया था स्क्रू रूल क्या होता है, isn't it? That is A cross B, isn't it? This is A cross B and the direction is inside, isn't it? ये दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। वो करना क्या है कि आप इस जिस डायरेक्शन पे आपका करंट कैरिंग वायर, उस डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, थंब को पॉइंट करना है और यहाँ पे पाम को रखना है इन द डायरेक्शन वेयर यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। फिर वहां से जाके इसको कर्ल करेंगे, isn't it? ठीक है, ये अंदर, क्लियर। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा सॉरी अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड। इनवर्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल सॉरी डिटरमिनेशन दिस इज इनवर्ड। ये इनवर्ड आउटवर्ड मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था, एक एरो है जो कि अंदर घुस रहा, तो आपको वो उसका पीछे का पोर्शन शो करेगा, क्रॉस पोर्शन शो करेगा, isn't it? अगर इसी के जगह अगर मैं यहीं पे बना लूं इस डायरेक्शन पे, यहां पे पॉइंट P, तो यहां पे ऐसे एंड दिस विल बी आउटवर्ड, दिस विल बी आउटवर्ड, क्लियर है? डायरेक्शन क्लियर हो रहा है आप लोगों को, हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक मेंशन करें, देन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग। अगर आपको याद करना है तो आप कहीं पर लिख ले, राइट हैंड पाम रूल। सो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, isn't it? That what we have learned। कैसे सीखा कि एक करंट कैरिंग वायर होगा, ठीक है, वहां पे एक डीएल एलिमेंट को आप कट करेंगे, वहां से थीटा एंगल पे पॉइंट पी, और वहां पे अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, थंब को पॉइंट आउट करेंगे या रेस्ट करेंगे ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड यू विल कर्ल योर फिंगर लाइक दिस इनसाइड। तो यहां पे आपको मिल रहा है इनसाइड, फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड, मींस व्हाट, दिस विल बी व्हाट, इनसाइड। इस बार हम इनसाइड आउटसाइड नहीं लिखने वाले आगे, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, सॉरी थर्ड टाइम एंड लास्ट टाइम, ठीक है, उसके बाद नहीं करूंगा। अगर इसी का ऑपोजिट डायरेक्शन पे यहां पे पॉइंट लूं, सो अगेन रेस्ट योर थंब ओवर हियर एंड दिस इज आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए दिस, क्लियर। अब हर जगह आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे, फिर वहां आप लिखेंगे आउटसाइड इनसाइड, बच्चा जैसे एबीसीडी लिखो, नो यू शुड लर्न इट, ओके। चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आई एम गिविंग यू 4 डायग्राम्स रिगार्डिंग दिस, ओके। पहला है, ये क्लियर है आप लोगों को, हो गया होगा, ओके। देयर आर सम क्वेश्चंस। पहला कि मान लेते हैं कि सपोज दिस इज द डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग, करंट हमारा इस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है, यहां पे पॉइंट P है, यू हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, पहला। दूसरा, इसके जस्ट ऑपोजिट पे लेकर आओ, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और आपका पॉइंट P यहां पे ले, ओके। नाउ द थर्ड वन, दिख रहा है नीचे आप लोगों को, दिख रहा है स्टूडेंट्स, ओके, बताइएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, सपोज द करंट इज फ्लोइंग, पता नहीं कैसा, बस एक डॉट दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे मेंशन है दैट द करंट इज फ्लोइंग इन, द करंट इज फ्लोइंग, करंट कमिंग आउटवर्ड, current
कमिंग आउटवर्ड, यस ये आउटवर्ड का है, ठीक है। नाउ लास्ट वन, फोर्थ वन, करंट गोइंग इनवर्ड, नीचे दिख रहा है स्टूडेंट्स? ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व। हो गया स्टूडेंट्स, कर लिया आप लोग? आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। लेट्स चेक आउट। करंट हमारे इस डायरेक्शन पे है, आप यहां पर रेस्ट करेंगे थंब को एंड दिस विल कर्ल एंड इट विल कम आउट, बिकॉज़ इस पॉइंट पे निकाला तो दिस इज आउटवर्ड। यहां पे है, यहां पे ये इधर देखिए, दिस इज, आपको इस पॉइंट पे निकालना, तो ये पॉइंट किधर है? अंदर है ये पॉइंट, इजंट इट? अगर यहां निकालना होता है, सिर्फ इस पॉइंट पे निकालना होता, सिर्फ इस पॉइंट पे, यहां पे भी इनवर्ड है इसके लिए, ये वाला पॉइंट भी इसके लिए क्या है? इनवर्ड, दिस इज व्हाट इनवर्ड। यहां पे आओ, यहां पे हमारा करंट का डायरेक्शन है, दिस इज हमारा करंट का डायरेक्शन है, तो हमारा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? ये दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन को। यहां पे ये हमारा कैसा है? दिस इज आउटवर्ड। ये हमारा किधर बना? देखो इधर देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये कैसा बना? ऐसा। याद रहे ये हमेशा कैसा बनेगा? 90 डिग्री ऑलवेज, मतलब here always b, vector b is always perpendicular to what? Vector b is always perpendicular to dl vector and vector b is always perpendicular to r। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ऑलवेज, ये बहुत जरूरी है, आगे का क्वेश्चन में हम लोगों को काम आने वाला है। ओके, मोर क्वेश्चंस विल डू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक। Due to a straight या फिर इसको फाइनाइट लिखिए, due to finite current carrying wire, this is your topic। हम लोगों ने पढ़ा अभी तक दैट ये जो फॉर्मूला है dV is equal to ideal sin theta upon r square, we can only use for the small element, this is only applicable for small element dl which is in the direction of the current। ये हम लोगों ने पढ़ा, isn't it? But if we get the long finite wire, ऐसा, अगर ऐसा फाइनाइट लॉन्ग वायर लेते हैं, इट्स फाइनाइट नॉट इनफाइनाइट, मतलब लंबा वायर, ठीक है, जिसका इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे, डिस्टेंस A पे, यहां से इसका एंगल, इफ आई टेक इट एज यहां से, दिस एंगल इज phi1 and this is यहां से phi2। अब एंगल देखिएगा हम कहां से दिए हैं, I haven't chosen from here to here, I have chosen from here to here, that is phi1, and from here to here phi2। ओके, यहां से इस पॉइंट से इस मिडिल पॉइंट से अगर हम L डिस्टेंस की दूरी पे, कितने डिस्टेंस की दूरी पे? L डिस्टेंस की दूरी पे एक dl लेंथ को कट करें और वहां से P पॉइंट को मैच करें एंड टेकिंग इट एज एंगल थीटा। अगर ये थीटा एंगल यहां पे मेंशन करें, तो यहां पे करंट अगर इस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है, तो यहां पे हमारा कितना करंट, सॉरी, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड at the point due to finite wire, if I write it like this, तो we don't know any formula for this, हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डीएल एलिमेंट उठाएंगे
और डीएल एलिमेंट को यूज करेंगे और सबको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करके दैट वी नो ड्यू टू व्हाट स्मॉल एलिमेंट डीएल। ठीक, दैट व्हाट आई डिड ओवर हियर। यहाँ मैंने स्मॉल एलिमेंट लिए तो ये हमारे यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे dv इज इक्वल टू idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब थीटा के जगह वी कैन राइट इट एज थीटा। ठीक है, हो गया, सो इजी। बट वेट, कैन आई राइट इट एज थीटा ओवर हियर? कैन आई राइट इट लाइक दिस थीटा ओवर हियर? क्यों नहीं? बिकॉज क्या सिर्फ इसी डीएल एलिमेंट को लेना है क्या भाई? यहां पे डीएल लेंगे, यहां डीएल लेंगे, यहां डीएल लेंगे तो बार बार क्या चेंज होगा? थीटा। थीटा इज वेरिएबल और थीटा के साथ हमारा अगर ये डिस्टेंस आर वेक्टर लो, ये भी तो वेरिएबल होगा। ओहो, एक वेरिएबल हो तो उस सबको कांस्टेंट को बाहर निकाल के उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर ध्यान दो तो थीटा के साथ साथ हमारा आर भी वेरिएबल है। In that case, what we will do? यहाँ पे for this cos theta what we can write? बता सकते हैं? Cos theta is equal to what? B by h. So instead of this, can I write a upon r? Isn't it? So a के जगह हम लोग r cos theta में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। a is equal to what? r cos theta, या r के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? r is equal to a upon cos theta, मतलब ये वैल्यू मिल गया r की, r का भी हमारा वैल्यू मिल गया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई राइट tan theta, ये भी लिखता हूँ tan theta, ये क्या मेंशन कर सकते हैं? p by b, so p upon मतलब l upon a हो जाएगा, l upon a। तो यहाँ पे l के लिए हम क्या लिख सकते हैं? a tan theta। वैल्यू सेट हो गई, हमको डीएल की जगह कुछ लिखना था, हमको आर की जगह कुछ लिखना था, अब हमको साइन थीटा की जगह पे कुछ लिखना है। यहाँ पे साइन थीटा की जगह हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? हाउ मच इट इज? व्हाट विल बी द एंगल? तो अगर आपको याद होगा तो इससे पहले वाले डीएल एलिमेंट के लिए जब हम निकालते थे तो कि करंट यहाँ पे ये डीएल एलिमेंट और ये वाला एंगल लेते थे हम लोग, इस पॉइंट पी पे ये वाला हम लोग पॉइंट लेते थे, तो ये हमारा थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना है? सो व्हाट यू विल राइट इंस्टेड ऑफ दिस? dv is equal to I dl sin 90 minus theta upon r square। आया ना बोलो? क्लियर हो चीजें? नाउ sin 90 minus theta के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? cos theta लिख सकते हैं। ओके, बट l के जगह यहाँ पे dl लिखना है और हमारे पास वैल्यू क्या है? a l है। सो हम लोग क्या करेंगे इसको स्मॉल पार्ट, तो कैन आई राइट इट एज dl upon d थीटा। कैन आई राइट इट एज dl upon d थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे, आपको वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा बता सकते हैं? a sec स्क्वायर थीटा। सो dl का वैल्यू क्या मिलेगा? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कैन नाउ यूज दिस वैल्यू ओवर हियर? क्या इस वैल्यू को यहाँ पे यूज किया जा सकता है? I a sec स्क्वायर थीटा d theta 90 minus theta, and instead of this r square what you will write? a square upon cos square theta, a square upon cos square theta। a से a बन जाएगा। ओके ओके, सॉरी यहाँ पे साइन लिखा नहीं है, साइन ऑफ 90 minus theta। now what you will get over here students? दिस विल बी आई, यहां से कुछ चीजें कॉमन आएंगी। अच्छा, हमको करना है क्या? हमको टोटल पूरे फाइनाइट के लिए निकालना है, तो व्हाट आई विल डू? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, फिर ये इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? क्या मुझे phi 1 से phi 2 तक करना है या क्या मुझे phi 2 से phi 1 तक करना है? बिकॉज़ आपको करना कितना का है? इस पूरे एंगल का। तो इस पॉइंट के बाद, इस क्वाड्रेंट के बाद इधर का वैल्यू हमारे कितना होने वाला है? -phi 2,
और यहां से ऊपर कितना होने वाला है +5 अधिकटिंग टर्म है। दिस विल बी फ्रॉम 5 टू पॉजिटिव 5 टू 5 नाउ dv को इंटीग्रेट करते करते व्हाट वैल्यू विल गेट स्टूडेंट्स b। यहां से जो चीजें कांस्टेंट है, क्या यहां पे करंट हमारा कांस्टेंट है? क्या हमारा यहां पे करंट कांस्टेंट है? एंड वन थिंग मोर आई एम नॉट मेंशनिंग ओवर हियर, जो कि अब हम पुट करने वाले हैं यहां पे, दैट इज हमारा फार्मूला क्या था b नॉट अपॉन 4 पाई। सो b नॉट अपॉन 4 पाई हम छोड़ते हुए आए, तो वो कांस्टेंट है इसलिए यहां पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे b नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, ये बाहर निकला, और साथ में क्या हमारा i अपॉन a बाहर आ जाएगा, i अपॉन a। अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ बताइए, यू हैव एनी आइडिया देन से? क्या सिर्फ यहां पे हमारा sin थीटा बचेगा, सिर्फ sin थीटा। कहां से कहां? -phi2 से प्लस phi1 से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर नहीं कीजिएगा दैट वाज सर आपने b नॉट अपॉन 4 पाई नहीं लिखा, कांस्टेंट टर्म है इसलिए मुझे इसको बाद में यूज करा, बोर्ड मेरा काफी छोटा गरीब आदमी है, अंडरस्टूड। सो इसलिए आप मेंशन करिए कांस्टेंट टर्म b नॉट अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू 10 to the -7 होता है, अंडरस्टूड। ओके हटाइए वो सब, b नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, हियर व्हाट यू विल गेट, ये लोअर लिमिट, ठीक है, दैट इज अपर लिमिट। आपको पता है क्या करना है, sin थीटा 1 माइनस ऑफ sin थीटा -2, ये माइनस प्लस अभी हम लोग खिला कर रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। सो b नॉट अपॉन 4 बाय a अपॉन a sin phi1 plus sin phi2, this formula you will use for the finite current carrying wires, that is what b नॉट अपॉन 4 by i upon a sin phi1 plus sin phi2। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन सब मिलने वाले, तो आपने जो भी मेहनत करा सब कर लिया, सब कर लिया। इसके बाद अगर आपको कोई क्वाड्रेंट्स वाला प्रॉब्लम आएगा तो आप समझिएगा सारा प्रॉब्लम हमने यहाँ सॉल्व किया, उसके बाद ही आगे बढ़े। हम लोगों ने ऑल साइन tan cos कर लिया, ठीक है, ये चीजें पता चलेंगी। फर्स्ट इसको कंप्लीट करें, देन विल डू द न्यूमेरिकल्स।